Yes, good morning class. So in the last class, that is yesterday, we had covered the topic that is split in the Congress system, which we had taken in detail. And when we were studying that split in the Congress system, we have seen the rivalry between the Indira and the syndicates, and you know the meaning of syndicates now. तो उसको हमने डिटेल में किया था. Then we saw जो ये faction rivalries थी, that was already existing within the Congress system, but it came into open where all the people knew about it from the presidential election of 1969. Although there were factions already existing, but it came to open areas where people knew about it from the election. उसमें हमने देख लिया how it came in the open area, जहाँ पर there was an official or the member candidate of Congress. What was his name? Official candidate. Who was the official candidate of Congress party for the post of presidential election? N. Sanjeeva Reddy. And who was the independent candidate who was backed and motivated by Indira Gandhi? V.V. Giri. And finally, who win that election? V.V. Giri. So from there we saw a split and the division between the Congress party, where the Congress party was divided into two parts. Which were those two parties? Suddenly, which were those two parties? After the election of 1969, that was the presidential election, Congress had a split. One was the party of syndicates and other was of Indira Gandhi. What was the name of those two parties? So Congress O, organization, and Congress R. Which party belonged to Indira Gandhi? Congress O or Congress R? Congress R. That was list. Okay. So we had discussed that. Then we saw about abolition of privy purse. Those were some of the 10 points, principles, policies put forward by Indira Gandhi as she started following the which type of policies? Left oriented. Left oriented, the meaning I have told you about the difference between left parties and right parties. So she was following the left orientation. Now, as she wanted to be an independent leader, she wanted to be subsided, side होना चाहती थी किनसे? Syndicates के influence से. Okay, because हमें पता है how and under what conditions and circumstances syndicates had supported her to be the Prime Minister of India in 1966. ठीक है? So today the topic for today will be the 1971 elections and restoration of Congress. So along with this election, 1971, which was supposed to be contested in which year? 1972. अगर 67 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा इलेक्शन, तो ये कब होने चाहिए थे? If we see the tenure of 5 years, 72 में. But this period of tenure was only for 4 years because Indira Gandhi wanted this particular tenure to be dissolved. उन्होंने खुद प्रेसिडेंट से बोला था इस टेन्योर को डिसॉल्व कर दो. क्यों? जब स्प्लिट हुआ तो जो उनकी पार्टी की मेजोरिटी थी वो क्या हो गई? कम हो गई. कम हो गई तो उनको सपोर्ट किसने किया? गवर्नमेंट को मेंटेन रखने के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी ने. कम्युनिस्ट पार्टी गिव देम द सपोर्ट, क्योंकि जो इंदिरा गांधी है वो कौन सी पॉलिसी को फॉलो करने लगी थी? आइडियोलॉजी को, लेफ्टिस्ट. और जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं वो किस पॉलिसी को फॉलो करती हैं? लेफ्टिस्ट. तो कम्युनिस्ट यहाँ पर सीपीआई सपोर्टेड इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी, तो वो मेंटेन कर पाई अपनी पोजीशन एज अ गवर्नमेंट 1971 तक. बट वो मेजोरिटी नहीं थी वेयर शी कुड टेक डिसीजंस या कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर पाए जितना उसको मेजोरिटी चाहिए होती थी. तो बस यहाँ पर गवर्नमेंट एक टाइप से फंक्शन कर रही थी. जो पॉजिटिव आउटपुट होना चाहिए किसी गवर्नमेंट का उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी फॉर द पुअर पीपल, लेबर क्लास, डिफरेंट सोशल सेक्शंस थे जिसके लिए इंदिरा गांधी वांटेड टू पुट अप वेरियस प्लान्स. ओके, ताकि उसका जो वोट बैंक था, जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनसे गैदर करना चाहती थी. बट वो यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रही थी बिकॉज कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर जब तक स्प्लिट तो हो गया था बट दे वर फॉर्मिंग द मेजोरिटी. गवर्नमेंट उन दोनों की मिला करके थी. तो यहाँ पर उसने डिसॉल्व करवा दी. इसीलिए फ्रेश इलेक्शंस होते हैं 1971 में. तो इस इलेक्शन के साथ साथ क्या होता है एक और आउटकम? रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस. इफ यू सी दिस रेस्टोरेशन, कब से कंपेयर कर रहे हैं इस रेस्टोरेशन को? 67 में क्या होता है? 1967 में यहाँ पर हमने क्या देखा था? कांग्रेस लॉस्ट इट्स ऑल डोमिनेंस एंड पावर. यहाँ पर हर बहुत सारे स्टेट्स में दे लॉस्ट. जो हमने मैप वी सॉ, मैप में मैंने क्लियरली दिखाया था विच वर द एरियाज नाउ हु वर डोमिनेटेड बाय द नॉन कांग्रेस पार्टीज. जिसमें हमने कौन सी पॉलिसीज पढ़ी? कोलिशन पढ़ा. और कौन सा पढ़ा था? कोलिशन के साथ और क्या था? डिफेक्शन पढ़ा. एक और था नॉन कांग्रेस जो उससे पढ़ चुके थे. तो ये सारे जो न्यू पॉलिटिकल फिनोमिना थे वो सब आफ्टर हमने देखा है इस इलेक्शन से. तो यहाँ से क्या हुआ था? बहुत डाउनफॉल हो गया था अगर हम देखें पावर और इन्फ्लुएंस कांग्रेस का. तो वो इसको क्या करना चाहती थी? रिस्टोर. जो पावर और इन्फ्लुएंस थी उसको रिस्टोर करना चाहती थी किस इलेक्शन में? 19
70, वैसे तो 2 होना चाहिए था पर उसने खुद डिसॉल्व कर दिया अपनी गवर्नमेंट, एंड दैट वाज अ बोल्ड डिसीजन इफ आई से। वो श्योर नहीं थी कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बट शी हैड फेथ एंड ट्रस्ट ऑन हर पार्टी एंड अपनी पॉलिसीज पे, इसीलिए उन्होंने खुद अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया और दोबारा इलेक्शन का हुआ 1971 में। सो हम उसी को देखते हैं अब इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या हुआ। So this was the background to the topic which I am discussing today. Actually, this is working. Okay. So the 1971 election and restoration of Congress, and this is the last part of this chapter, which is the part 8 today. Okay, we'll finish the chapter today, so that from Monday we'll start a new chapter. That's a long chapter, and many new topics are added to that next chapter. Okay. The split in the Congress reduced Indira Gandhi's government to a minority. जैसे split हुआ तो जो majority थी government की वो क्या हो गई, minority हो गई। अब minority हो गई तो she cannot be the prime minister और उसकी government exist नहीं कर सकती थी। But at this point of time she was supported by, किससे support हुई, कौन सी पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा है कोलिशन, तो कोलिशन हो गया वहां पर। Yet और कोलिशन का रीजन मैंने क्या दिया कि इंदिरा गांधी हैड स्टार्टेड फॉलोइंग द ओरिएंटेशन ऑफ लेफ्ट पार्टी और सीपीआई लेफ्ट पार्टी में आती है। Yet our government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including Communist Party. There were many more parties, small parties. The major party was Communist Party of India and the DMK also. And DMK कहाँ की पार्टी है वैसे? अगर states में देखा जाए, तमिलनाडु. I hope you remember that. During this period, the government made conscious attempts to project its socialist credential. यहाँ पे गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज थी किसको पैटर्न को फॉलो कर रही थी, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, फॉर द पब्लिक This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reforms laws undertook for the land ceiling. तो इंदिरा गांधी मेजरली जो वर्क कर रही थी वो किसके लिए कर रही थी, पब्लिक के लिए कर रही थी। पब्लिक ओरिएंटेशन था, लैंड सीलिंग, जिनके पास जमींदार से ज्यादा जमीन थी which was not required by them, उसको सील करके गवर्नमेंट ले रही थी, उसको डिवाइड कर रही थी किसके बीच, पुअर लोगों के बीच, रूरल एरियाज में जिनको उसकी जरूरत थी, ठीक है। इस टाइप के वर्क मेजरली इंदिरा गांधी वाज डूइंग। तो शी वाज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द लोअर क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लास थी, पीजेंट्स, फार्मर्स, लेबर्स, वुमेन्स और यूथ, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड थे। तो बेसिकली इन 1971 के इलेक्शन के लिए वो जो ये तैयारी कर रही थी, बेसिकली जो वोट बैंक वो अपना कलेक्ट कर रही थी, सपोर्ट कलेक्ट कर रही थी, कहां से कर रही थी, उनके माइंड में प्लान था फ्रॉम द बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। In order to end her dependence on the other political parties, but वो ये भी चाहती थी, यहाँ पर जो अभी गवर्नमेंट बनी हुई थी 1971 तक, किसकी सपोर्ट से बनी हुई थी, कोलिशन, सीपीआई और मेनी अदर पार्टीज, वो इस डिपेंडेंस को एंड करना चाहती थी किस इलेक्शन पे, 71 के इलेक्शन में। वो चाहती थी जो फ्रेश इलेक्शन हो, मुझे किसी पार्टी के साथ कोलिशन ना बनाना पाए, मैं क्लियर मेजोरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाऊं, ताकि मेरी जो भी पॉलिसीज आई वांट टू इंप्लीमेंट, द वे आई वांट टू वर्क, मेरे पास कोई रुकावट ना आए, कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो जो उसको रोक सके, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कर सके। तो दिस वाज हर आइडिया। So, in order to end her dependence on the political parties, strengthen her party position in the parliament, and seek a popular mandate of her programs, Indira Gandhi government recommended the this solution. इसीलिए उन्होंने क्या किया, dissolution मतलब डिसॉल्व कर दी अपनी लोकसभा को यहाँ पर in December 1970. This was another surprising and bold move. The fifth general election of the Lok Sabha were held in February 1971. तो उनके माइंड में था मुझे एक पॉपुलर सपोर्ट चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना है, इनके साथ अगर और पार्टी से सपोर्ट कोलिशन बना के रखूंगी तो आई विल नॉट बी एबल टू डू व्हाट आई वांट। जो उनकी पॉलिसीज थी, जो उनकी आइडियोलॉजीज थी, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। सिंडिकेट्स थे, नाउ जो कोलिशन बन गया था सीपीआई, स्टिल थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अदरवाइज उन्हें लगा एक साल और बस टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो शी वांटेड कि डिसॉल्व हो जाए 1971 में, ताकि पहले कर लिया 71 में, ताकि न्यू फ्रेश इलेक्शंस हो जाए। तो दिसंबर 1917 में उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी अपनी गवर्नमेंट, किसको बोल करके, प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी, जिसको बोल सकते हैं हम कि लोकसभा जो हमारी गवर्नमेंट है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, एंड वी विल हैव द फ्रेश इलेक्शंस। और फ्रेश इलेक्शंस कब होते हैं, फरवरी 1971। तो अब देखते हैं द कंटेस्ट, क्या बैकग्राउंड चल रहा था जब ये इलेक्शंस हो रहे थे। The electoral contest appeared to be loaded against Congress are, after all, the new Congress was just one faction of an already weak party. अगर ज्यादातर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था ज्यादा सपोर्ट किसके पास होगा, कांग्रेस को, जो बहुत ओल्ड थी। पर अगर क्योंकि जो ये न्यू पार्टी थी, ये बस एक फैक्शन था, इंदिरा गांधी जो अलग हो गई थी, ये क्या था, बस एक
फैक्शन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कांग्रेस के अंदर बहुत अलग अलग फैक्शन से, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग थे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स की पार्टीज थी, बट फिर भी वो देवर और इंक्लूडेड विद इन द कांग्रेस। पर जब ये इंदिरा गांधी की पार्टी अलग होती है, कांग्रेस आर, तो व्हाट वी कॉल इट ओनली वन फैक्शन ऑफ द कांग्रेस। Everyone believed that the real organization strength of the Congress party was under the command of Congress O. Still people thought जो रियल कांग्रेस है, जो रियल पावर है, वो किसके हाथ में? कांग्रेस O के, जो ओल्ड ऑफ सिंडिकेट्स। To make matter worse for Indira Gandhi, all the major non-communist and non-Congress opposition, तो जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट तो किसके साथ थी? कम्युनिस्ट पार्टीज तो वॉज विद इंदिरा गांधी, तो उसके अलावा जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी, दे ऑल केम अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन दिस इलेक्शन ऑफ 1971। सी ये चलता रहेगा, हम कभी सपोर्ट में, कभी ऐसा, जैसे टेबल टेनिस होता है, कभी बॉल इधर कभी उधर, तो अगर हम इलेक्शन देखें, कुछ भी टिक क्या नहीं है, स्टैटिक नहीं है, परमानेंट नहीं हो सकती है कि एक को पॉपुलर सपोर्ट मिल गया तो वो कंटिन्यूस रहेगा। विद इन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, विद इन 1 ईयर सपोर्ट चला जाता है और सपोर्ट वापस आ भी जाता है। तो 71 में हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारी जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो किसके अगेंस्ट थी? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थी इस इलेक्शन में। और कौन अगेंस्ट थी? कांग्रेस, वो तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या ग्रुप बन रहा है, अलायंस बन रहा है इस इलेक्शन के लिए पर्टिकुलरली। आपको ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा, आप कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि इससे पहले भी अलायंस की बात हो रही थी, नॉन कांग्रेसिज्म की बात हो रही थी, कांग्रेसिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ा हमने, कोलिशन के बारे में। इस इलेक्शन में फिर से ऐसा ही हो रहा है कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कांग्रेस वो तो थी, प्लस एक अलायंस बना है, उस अलायंस को देखते हैं क्या है। नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज का है ये, एक तो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज अगेंस्ट हो गई, और दूसरी नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस एंड व्हिच दिस अलायंस वाज कॉल्ड ग्रैंड अलायंस। बहुत बड़ा ग्रुप बन गया जो एक साथ आ गए इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन 71 के इलेक्शन में। और ये ग्रुप तो ये देखिए किस किस का था, द एसएसपी, द पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय क्रांति दल, इतनी सारी पार्टीज दे केम टुगेदर एंड दिस ग्रुप वाज कॉल्ड ग्रैंड अलायंस, क्योंकि बहुत बड़ा अलायंस था ये। इतनी सारी इंपॉर्टेंट पार्टीज का एक साथ जुड़ना, किसके अगेंस्ट? कांग्रेस ओ के अगेंस्ट या कांग्रेस आर के अगेंस्ट। Came together under the same umbrella, मतलब एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ गए। The ruling party had the alliance with the CPI. If we talk about the ruling party, अभी ruling party कौन सी थी सिलेक्शन से पहले? इंदिरा गांधी की, कांग्रेस सी थी, तो उसने अपना अलायंस किसके साथ बना रखा था? फिलहाल CPI के साथ था उसका अलायंस फॉर दिस इलेक्शन। Yet the new Congress had something that is big opponent left. उसके बाद भी देखें, जो ये न्यू कांग्रेस थी इंदिरा गांधी की, इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज थी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो और पार्टीज में नहीं थी। तो इंदिरा गांधी अलग कैसे दिखी इस इलेक्शन में? बिकॉज इट हैड एन इशू एंड एजेंडा एंड द पॉजिटिव स्लोगन। उसका एक एजेंडा था, उससे कुछ पॉलिसीज थी, कुछ प्रिंसिपल्स थे, और एक पॉपुलर स्लोगन था फॉर दिस इलेक्शन। वो एमलेस नहीं लड़ रही थी इलेक्शन कि आई हैव टू बी द प्राइम मिनिस्टर। शी हैड प्रॉपर प्लान फॉर इट एंड शी हैड अकॉर्डिंगली प्लान्ड द थिंग्स। शी हैड अ स्लोगन, शी हैड अ एजेंडा कि लोगों को क्या बोलना चाहती है इस इलेक्शन में ऑन द बिहाफ, इन कंपैरिजन तो हर पार्टी, अदर पार्टी जो थी, बस उनके माइंड में क्या था, हमें किसको हटाना है? इंदिरा गांधी को हटाना है। कांग्रेस ये जो है कांग्रेस आर को हटाना है। चाहे कांग्रेस ओ भी उसके देखा जाए तो राइवल में आ रही थी, और जो ये ग्रैंड अलायंस बना था ये भी कांग्रेस ओ को हटाना चाहती थी, कांग्रेस आर को हटाना चाहती थी। तो यहाँ पर डिफरेंस आया इनकी आइडियोलॉजीज में। इंदिरा गांधी का वेल प्लान्ड था, वह एक स्लोगन दिया हुआ था पर्टिकुलरली कि इस इलेक्शन में उसका स्लोगन क्या है, कि जैसे मोदी जी का क्या था, सबका विकास बोलते हैं ना, और कभी वो बेटी पढ़ाओ, तो ये सब क्या होता है, एजेंडा होता है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ऐसे इंदिरा गांधी का इसमें क्या था, गरीबी हटाओ। तो मैंने बताया ना वो कौन से सेक्टर को एम कर रही थी, सबसे नीचे वाले, जो पुअर था, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उनको एकदम फूड की शॉर्टेजेस थी, जॉब्स नहीं थी, वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था। तो उसने इस एरिया को हमारी सोसाइटी के टारगेट किया, यहाँ से उसने अपना सपोर्ट को कलेक्ट किया, इसीलिए उसका जो स्लोगन भी आया वो क्या था, गरीबी हटाओ। ठीक है, आई एम रीडिंग इट फर्दर। इंदिरा गांधी said that opposition alliance had only one common program. इंदिरा गांधी ने साथ साथ अपने स्पीच में भी बोला, जो मेरी अपोजिशन पार्टी है उनका एजेंडा और फोकस एक ही है, और वो क्या है, इंदिरा हटाओ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमूव इंदिरा। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस शी पुट फॉरवर्ड, इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें तो इंदिरा गांधी का क्या प्लान था, शी पुट फॉरवर्ड द पॉजिटिव प्रोग्राम कैप्चर्ड इन द फेमस स्लोगन। तो उसने अपना एक पॉजिटिव प्रोग्राम बताया और उसके साथ एक स्लोगन भी दिया, गरीबी हटाओ, that is remove poverty, because सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में इसी वजह से हो रही थी। She focused on the growth of the public sector, imposition of ceiling. तो she also showed the plans and policies. उसके plans क्या थे, मोस्टली फॉर द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक लोगों के लिए क्या करना है। तो उसमें से देखिए उसने
इम्पोजिशन सीलिंग ऑन द रूरल लैंड होल्डिंग्स, मतलब जमींदार जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड था उसको सील कर लिया, उसको इक्वली डिवाइड किया जिन लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट थी, पुअर लोगों को, पुअर फार्मर्स, पीजेंट्स, लेबर्स। सेम वाज डन विद द अर्बन प्रॉपर्टी ऑल्सो। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज, जो बहुत ज्यादा एक डिस्पैरिटी आ गया था, गैप आ गया था, जो रिच था वर बिकमिंग रिचर एंड हु वर पुअर दे वर बिकमिंग इवन पुअरर। तो रिच एंड पुअर के बीच में जो बहुत ज्यादा गैप हो रहा था इन 1970s वाज द मेजर इशू इन दिस इलेक्शन, जो इंदिरा गांधी थोड़ा कम करना चाहती थी। व्हाटएवर शी वांटेड टू गेन इंपॉर्टेंस, पॉपुलैरिटी बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स। तो उसने ये गैप करने की कोशिश कम की है कि जो बहुत गरीब है वो बहुत गरीब हो गया है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। तो इस गैप को थोड़ा सा कैसे कम किया जाए, इसके लिए उसने वेरियस पॉलिसीज निकाली है, ठीक है। देन शी हैड थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से 4th 5th लास्ट लाइन है, जो ये गरीबी हटाओ जो स्लोगन दिया था, व्हाट वाज हर एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो एम था वो शी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज, अपना सपोर्ट बेस पॉपुलैरिटी बनाना चाहती थी किन लोगों के बीच में, जो डिसएडवांटेज्ड थे। इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेज्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो कुछ भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज, जेंडर बेसिस पे इनइक्वालिटीज हो सकती है, जो वुमेन्स की कंडीशंस थी वहां पर, जो यूथ था अनएम्प्लॉयड था मोस्ट ऑफ द यूथ। तो ये सब लोग कौन हो गए, डिसएडवांटेज, जिनको सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है इफ यू कंपेयर देम टू द रिचर इलाइट क्लास ऑफ इंडिया एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो डिसएडवांटेज लोग थे उनके सपोर्ट में इंदिरा गांधी आई है, ठीक है। तभी यहाँ पे वर्ड यूज किया डिसएडवांटेज, स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबर्स। जो लेबर्स थे उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, दे यूज्ड टू वर्क फॉर जमींदार, पर उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत ज्यादा काम करते थे, उसके बदले जो उन्हें रिटर्न मिलता था दैट वाज टू लेस टू इवन सर्वाइव। तो अपनी फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, लैंड सीलिंग, जिन जमींदार के पास एक्स्ट्रा जमीन थी जितना वाज नॉट रिक्वायर्ड, उस पे बेसिक उन्होंने रूल्स प्रोविजंस निकाले और लैंड सीलिंग की इवन इन द अर्बन एरियाज, ताकि जो ये लैंडलेस लेबर्स है इनके पास अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन तो हो, दे कैन सर्वाइव अपनी फैमिली के लिए, वहां पर वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। दलित लोगों के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट के बेसिस में, बहुत जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनटचेबल्स, दलित्स है ना, एससीज, एसटीज, तो उनके साथ कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। सेम विद आदिवासी जो एसटी में आ जाते हैं, माइनॉरिटीज बहुत सारे हैं, वुमेन्स एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो दिस वाज द सपोर्ट बेस जिसके लिए उसने काम किया गरीबी हटाओ के नाम पर, और यहीं से उन्हें सपोर्ट मिला इस इलेक्शन में, ठीक है। तो देखिए तो शी हैड द पॉजिटिव एक आइडिया था, पॉजिटिव एक पॉलिसी थी, एक प्लान था फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रास्ट टू हर पॉलिसीज, हम अपोजिशन चाहे ग्रैंड अलायंस की बात करें, यहाँ पे 5-6 पार्टी एक साथ आ गई, चाहे हम कांग्रेस वो की बात करें, दे डिड नॉट हैव एनी पॉजिटिव प्लान्स फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। उनका एम क्या था, इंदिरा हटाओ। तो लोगों के माइंड में बहुत नेगेटिविटी हो गई थी और पार्टीज के अगेंस्ट, तो शी गेन द पॉपुलैरिटी जो वो चाहती थी, ओके। The slogan of गरीबी हटाओ and the program that followed it were a part of इंदिरा गांधी's political strategy। तो देखो क्लियर लिखा हुआ है, स्लोगन जो दिया उसने गरीबी हटाओ, और जो प्रोग्राम उसने फॉलो किया, जो हम हो रहे हैं ना, डिसएडवांटेज लोग को हेल्प करना, पुअर क्लासेस, लेबर क्लासेस, अनएम्प्लॉयड लोग, वुमेन, चिल्ड्रन, तो इन लोगों को जो हेल्प करनी थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ हर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ 1971 लोकसभा इलेक्शंस, ओके। तो इंदिरा गांधी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस। तो इंडिपेंडेंट एक सपोर्ट चाहती थी जो उनकी पॉलिसी के बेस पे आए, और आई थिंक वो सक्सेसफुल हुई, जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो दिस वाज द कंटेस्ट, उन्होंने किस तरह की स्ट्रेटेजीज बना रखी थी फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ 1971, जो गवर्नमेंट डिसॉल्व करने के बाद फ्रेश इलेक्शन हो रहा था। तो उसका आउटकम तो एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, सक्सेसफुल हुई बहुत, और इतना सक्सेसफुल हुई है जो लास्ट 3 इलेक्शन थे हमारे, 4 इलेक्शंस थे लोकसभा के, इतना मेजॉरिटी कभी भी नहीं मिली थी। इफ यू टॉक ऑफ 52, 57, 62 एंड 67 में तो खैर डाउनफॉल हो गया था। तो इन चारों अगर हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, इतना पॉपुलर सपोर्ट, इतनी मेजॉरिटी कभी नहीं अचीव हुई थी, जो कब अचीव हुई, 1971 में। रीजन वी हैव सीन, उनकी क्या प्लान्स थे, पॉलिसीज थे, और जो इंडिपेंडेंट वो होना चाहती थी, सिंडिकेट्स को साइडलाइन करना चाहती थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी, वो सब पॉसिबल हुआ कब, 1971 में। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज क्या हुई, रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जो 1967 में क्या हो गया था, लग रहा था खत्म हो गया है, बट शी गेन द इंपॉर्टेंस एंड पावर फॉर कांग्रेस वंस अगेन। पर थोड़ा सा डिफरेंस आया, वो हम रीड करेंगे कि क्या पहले की कांग्रेस और इस कांग्रेस में क्या था, थोड़ा सा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो आउटकम देख लेते हैं पहले। द आउटकम
एंड आफ्टर, इस इलेक्शन के बाद, द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वर एज ड्रामेटिक एज वाज द डिसीजन ऑफ होल्ड दीज इलेक्शन। लेट्स सी क्या ड्रामेटिक डिसीजंस थे। द कांग्रेस आर CPI alliance won more than seats votes than Congress had ever won। इतनी सीट्स कभी नहीं मिली थी जनरल इलेक्शंस में लोकसभा के। जो अलायंस था कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और उसके साथ अलायंस किसका था, CPI। तो इन दोनों ने मिलकर के इतने वोट्स लाए हैं जो पहले कभी नहीं आए थे जनरल इलेक्शंस में 1952 से। द कंबाइंड वन, सो दे वन 375 सीट्स, अंडरलाइन कर लेना, they won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.8। तो ये तो आप लोग समझते हो ना, अगर सीट्स 80% आ रही है, 85% आ रही है, पर वोट्स कितने आ रहे हैं, 48.4% वोट्स, बिकॉज ऑफ विच सिस्टम, FPTP सिस्टम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, ऑफ द पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन। कॉन्ट्रास्ट टू दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस ओ, अगर हम कांग्रेस ओ का जो सिंडिकेट्स की कांग्रेस थी, लेट्स सी उनका क्या रिजल्ट आया है। द पार्टी with so many stalwarts means well known influential leaders, सबसे पुराने and important leaders जो थे उनका उस पार्टी में होने के बाद भी could get less than 1/4 of the vote secured by इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पास 1/4 वोट ही वो लोग ला पाए, that is they won merely 16 seats, only 16 seats they got। if you compare it with the results of इंदिरा गांधी की पार्टी से देखते हैं, with this the Congress party led by इंदिरा गांधी established its claim to being the real Congress। इस win के साथ, इस difference of वोट्स के बाद, सीट्स के बाद क्लियर हो गया कि रियल कांग्रेस किसकी है, कांग्रेस ओ नहीं है, कांग्रेस आर है। तो शी प्रूव्ड इट एंड रिस्टोर्स इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। और अगेन कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने दोबारा से जो अपनी पोजीशन थी, डोमिनेंस थी, उसे रिस्टोर किया इंडियन पॉलिटिक्स में। और एक अलायंस रह गया था, ग्रैंड अलायंस, जो एक साथ लोग आए थे इंदिरा को हटाने। व्हाट हैपेंड टू देम, द ग्रैंड अलायंस ऑफ अपोजिशन प्रूव द ग्रैंड फेलियर। बहुत बड़ा एक फेलियर रहा ये इतना ग्रैंड अलायंस इन्होंने आकर के बनाया, एंड दे थॉट इजीली दे विल बी एबल टू रिमूव इंदिरा गांधी और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, बट इट वाज अ बिग फेलियर बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी आइडियोलॉजी नहीं थी, कुछ एम्स नहीं थे, कुछ पर्टिकुलर एजेंडा नहीं था फॉर दिस इलेक्शन। इट वाज जस्ट इंदिरा हटाओ, ठीक है। दे कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। अगर इनकी सबकी अलायंस, कितना हमने पार्टीज पढ़ी थी, 7-8 पार्टीज थी वो, इन सबकी अगर सीट्स मिला दे तो बस 40 सीट्स ही ये लोग ला पाए। तो सी एक को 16 मिली कांग्रेस को, और ये जो ग्रैंड अलायंस, इतना बड़ा अलायंस आया था उसके सामने, इसको लग रहा था बहुत मुश्किल होगा उसको हराना, उसको कितनी सीट्स मिली है, बस ओनली 40। एंड रीजंस आपको पता चल सकता है एजेंडास के ऊपर। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो गांधी जी, इंदिरा गांधी की थी, वो इन लोगों के पास नहीं थी। तो उसी जो डिफरेंस की वजह से ये आउटकम हुआ 71 में। तो यू विल सी व्हेन यू विल स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत जल्दी यू विल सी चेंजेस। स्टैटिक नहीं होगा कभी भी, इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी है। अगर अलायंस एक साथ, इससे पहले हमने 67 में क्या देखा था, जब एक साथ अलायंस बना रहे थे लोग, तो यहाँ पर उन्होंने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई, पर वो ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं, प्रेसिडेंशियल रूल आ गया। फिर से इंदिरा गांधी ने यहाँ पर रिस्टोर किया है। अब क्या, इसके बाद फिर इंदिरा गांधी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि हमारी कंट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा इमरजेंसी कब लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो हमारी कंट्री में एक इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में। और नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, डिटेल में विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में। तो 1975 में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है। उसका भी बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या, जब भी हम इसमें पढ़ते हैं तो पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं। देखा होगा उस दिन से आपने कि क्या चीजें हो रही थी, व्हाट वर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर कंट्री या रिलेशंस ऑफ आवर कंट्री विद ईच विद अदर कंट्रीज और विद इन आवर कंट्री। इन पॉलिटिकल पार्टीज का एक दूसरे के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोग वर डिससैटिस्फाइड, लोगों की डिजायर्स क्या थी, नीड्स क्या थी, किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए थी। जब वो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती है, उसका आउटकम ही हम किस में देखते हैं, किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में देखते हैं। तो 1971 तक तो हमने देख लिया कि शी गॉट द वेरी गुड सपोर्ट एंड फेथ ऑफ द पीपल, जिसमें वो इतना अच्छे से शी वाज एबल टू रिस्टोर द पावर एंड डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस। बट अगेन वी विल सी 1975 में ऐसी क्या चीजें 71 से 75 के बीच में हुई कि हमें नेशनल इमरजेंसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू से अबाउट एनी इंसिडेंट ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, जो सबको पता होगा। वैसे इट इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, एवरीवन शुड नो। आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें अपने कंट्री के बारे में एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए चीजें। तो 75 में नेशनल इमरजेंसी हुई थी, हम उसका जो चैप्टर में नेक्स्ट शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि 71 इस इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी ने क्या क्या पॉलिसीज लाई, क्या क्या प्लान्स लाए, उनके एजेंडास किस तरीके से काम कर रहे थे, कि लोग सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। जो अपोजिशन पार्टीज थी, कभी अपोजिशन पार्टी शांत हो जाएंगी, कभी नहीं, चाहे इलेक्शन में कितना बुरा हार जाए, बट दे कीप ऑन ट्राइंग।
फिर ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ और एजेंडा लेके आए, कुछ नई पॉलिसीज लाएं, हमें भी पावर में आना है। अगर इतनी जल्दी सब गिव अप कर देंगे तो फिर तो एक वन पार्टी सिस्टम हो जाता है ना इंडिया में, और हमारा कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम। कभी कोलिशन बनाएंगे, कभी ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, बट दे विल ऑलवेज ट्राई टू गेट द पावर, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ओनली अबाउट क्या, पावर। ठीक है, तो हर किसी को पावर चाहिए। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लोग कैसे आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं कि फाइनली वो इतना सप्रेस हो जाती है, इतना मजबूर हो जाती है कि शी हैज टू इम्पोज इमरजेंसी। बहुत बड़ी टर्म होती है इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस आर्टिकल में है, क्या क्या लिखा है, ऑल दैट विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1971। बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि ये चीज से ही हम कनेक्ट करेंगे, तो इसको नहीं भूलना। 71 पे हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो 75 तक क्या क्या हुआ नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो हम इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम की 75 में। तो ये डेट्स को माइंड में, तभी पहले दिन से बोल रहा हूँ 52 से 71 के आई थिंक आप लोग का डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, कैसे चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, सब ध्यान होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आ रही है वो क्या आ रही है, 75, कैसे इमरजेंसी हुई। उसके पहले क्या देखेंगे हम फिर से उसका बैकग्राउंड, की कोई भी इंसिडेंट होता है डायरेक्टली हो जाता है, कोई उसका तो एक्शन होता है ना, उसका रिएक्शन होता है। तो 73, 74 में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से क्या हो गई, नेशनल इमरजेंसी। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक तो हो गया था, एक डायग्राम दिया हुआ, तो दिस डायग्राम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, देख लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, उस इलेक्शन का आउटकम दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है कि कितना इजीली शी वन ऑल द प्लेसेस। वैसे आई विल जस्ट टेक द रीडिंग, बेसिकली आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग रेस्टोरेशन और ये सून आफ्टर 97, थोड़ा सा इन्होंने फिर भी एक्सप्लेन किया 97 के बाद क्या सिचुएशन हो रही है, इसको रीड कर लेते हैं। Soon after the 1971 लोकसभा इलेक्शन, a major political and military crisis broke out in East Pakistan, जो हम पढ़ चुके हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में, हमने पढ़ा था अबाउट द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कैसे इंडिया ने उसमें इंटरफेयर किया जब बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान पहले हुआ करता था, तो फिर उसको क्या बना दिया हमने, इंडिपेंडेंस दिलाई, और वो क्या बन गया, बांग्लादेश। तो वो कब हुआ था, 1971। इसके बाद ही हुआ था वो वॉर, जब इलेक्शंस हो गए थे। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, सून आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शन, अ मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान, जिसको पहले ईस्ट, अब उसे क्या बोलते हैं हम, बांग्लादेश। ठीक है, एज यू हैव रेड इन चैप्टर 4, हमने जो पिछली बुक में पढ़ा था चैप्टर 4 उसका बोल रही है। The 1971 elections were followed by the crisis in East Pakistan and the Indo-Pak War. अगर हम इस जस्ट इलेक्शन के बाद देखें तो इंदिरा गांधी के पास इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले चैलेंज क्या आया है, मिलिट्री क्राइसिस, किसके अगेंस्ट, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। इंडिया ने सपोर्ट की थी वहां पर। These events added to the popularity of इंदिरा गांधी, और इसमें इंडिया बहुत सक्सेसफुल हुई थी। पता है हमने पाकिस्तान को यहाँ से हटाया था, हमने बांग्लादेश एज इंडिपेंडेंट एक कंट्री को बनाने में, फॉर्मेशन करने में हेल्प की थी। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और क्या हो गई, इंक्रीज हो गई कि शी इज द लीडर जिसकी रिक्वायरमेंट है इंडिया को टू टैकल विद द नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि हमारी कंट्रीज में इंडिपेंडेंस से ही बहुत ज्यादा इश्यूज थे। इफ यू टॉक अबाउट द बाउंड्रीज इश्यूज चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो इससे एक आउटकम मिला कि हम भी वॉर जीत सकते हैं, हरा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ ये, इंदिरा गांधी, बट जस्ट आफ्टर दिस इलेक्शन। तो डेट्स को याद रखा करो, चाहे हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का पढ़ रहे हैं चाहे इसका पढ़ रहे हैं। These events added to the popularity of Indira Gandhi. Even the opposition leader admired her statesmanship. यहाँ पर जो अपोजिशंस थे उन्होंने भी एडमायर किया कि जो एक लीडरशिप क्वालिटी शी हैड, वो अब बाहर चमक रहे थे, दिख रहे थे। यस शी हैड दैट, क्योंकि इतने लोग उसके अगेंस्ट थे, अपोजिशन थे, कांग्रेस को, ग्रैंड अलायंस, बट स्टिल शी मैनेज टू पुट फॉरवर्ड द एजेंडाज व्हिच शी हैड। और आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, आफ्टर गेनिंग द पॉपुलर सपोर्ट, आफ्टर रिस्टोरिंग द कांग्रेस सिस्टम, इस टाइप का जो वॉर होता है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी, उसको कैसे मैनेज किया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज किया, पाकिस्तान को कैसे रिमूव किया ईस्ट एरिया से, और इसको इंडिपेंडेंस दिलाई। इसकी वजह से जो अपोजिशन लीडर्स थे, अपोजिशन पार्टीज थी, दे आल्सो प्रेज्ड हर एज हर गुड लीडर। हर पार्टी सर्व थ्रू ऑल द स्टेट असेंबलीज। अब स्टेट असेंबली के इलेक्शन कब होने थे, हर 5 इयर्स में होते थे। 67 में दोनों के हुए थे। डिसॉल्व तो गवर्नमेंट तो कौन सी हुई थी, सेंटर में हुई थी ना, स्टेट में तो वही गवर्नमेंट थी। तो स्टेट के इलेक्शंस वर बीइंग टू सपोज कब होने थे, 72 में। तो अब जब वो थी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, इस रिजल्ट के बाद 71 के बाद सेंटर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना ली थी। पर वी टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात करें,
इसमें भी वैसा ही रिस्पॉन्स रहा, वैसी ही अच्छी मेजोरिटीज मिली एज वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि जब मेन लीडर कांग्रेस की है सेंटर में, लोग उससे इतने इन्फ्लुएंस्ड है, ऊपर से वॉर हो गई, इंडिया ने वॉर जीत ली, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो एक्सपेक्टेड था कि जब स्टेट में इलेक्शन होंगे सब किसको वोट करेंगे, कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेंगे ऑन द नेम ऑफ इंदिरा। और जो हमने वो मैप पढ़ा देखा था ना, जहां पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई थी बहुत सारी, दोबारा से सब गायब हो गए, दोबारा से कौन सी गवर्नमेंट आ गई पूरे एरिया में, कांग्रेस आ गई दोबारा से। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इसके रीड कर लीजिए। अपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर के बाद, हाँ, हर पार्टी सर्व थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। तो डिफरेंस याद रखना, 71 में ये क्यों हुआ था और 72 में वो क्यों हुआ। ठीक है, शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज। तो पहले तो ये था कि जब इलेक्शन हुआ था, हर एजेंडा वॉज टू प्रोटेक्ट द पुअर एंड वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। ठीक है, पर बट ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर, बट नाउ शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। नेशनलिस्ट वर्ड क्यों आ रहा है, जिस तरीके से शी हैड टेकन इनिशिएटिव ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो यहाँ पर वो एक नेशनलिस्ट लीडर की तरह भी जानने लगी। ठीक है, द अपोजिशन टू हर इधर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ द सिंपली डिड नॉट मैटर। अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा था 71 के बाद, आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर द वॉर, इस टाइम उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से ग्रो कर चुकी थी कि अपोजिशन कुछ मैटर ही नहीं कर रहा था, लोगों को बस एक ही पॉलिटिकल लीडर दिख रहा था, वो कौन था, ट्रू लीडर, ट्रू लीडरशिप जो दिख रही थी वो इंदिरा गांधी थी। अपोजिशन कोई भी पार्टी हो, ग्रैंड अलायंस बना लो, कोई सा भी अलायंस बना लो, इट डज नॉट मैटर। अभी तक शी हैड गेन्ड सो मच पॉपुलैरिटी विद टू सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज। टू सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज को कह रहे हैं, एक तो सेंटर में 71 में, 72 में इलेक्शन प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे आता है, क्योंकि जो हम स्टेट में इलेक्शन जीत रहे हैं वो किसी पॉपुलैरिटी की वजह से जीत रहे हैं, इंदिरा गांधी। अभी मोदी देखते हैं ना, मोदी तो सेंटर में है, हर स्टेट में जाके मोदी लड़ रहे हैं, नहीं, पर ऑन द नेम ऑफ बीजेपी हम वोट देते हैं कि ठीक है सेंटर में मोदी है, उनकी पॉलिसी एजेंडास बहुत अच्छे हैं, ही इज फंक्शनिंग लाइक दैट, तो लोग उनके नेम पे वोट देते हैं। तो सेम स्टेट असेंबली से जब इलेक्शन हुए तो किसके नाम पे आए, इंदिरा गांधी के। तभी यहाँ पर लिख रहा है विद द टू सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, one at the center and other at the state level, the dominance of Congress was restored। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था रिस्टोरेशन वो क्लियर हो गया, स्टेट पर भी सेंटर में भी they had restored their power once again। The Congress was now in power in almost all the states। It was also popular across different social sections। Within a span of 4 years, Indira Gandhi had warned of the challenges of her leadership and the dominant position of the Congress party। 4 साल की बोल रहे हैं, इलेक्शन कब हुए थे 67 से ना, 67, 68, 69, 70, 71, तो जो ये ईयर्स रहे इसमें उसने क्या बोला है, उन्होंने जो चाहती थी एक लीडरशिप क्वालिटी अपना दिखाना चाहती थी, जो डोमिनेंस दिखाना चाहती थी, शी वाज सक्सेसफुल। नाउ दे आर रिपीटिंग द थिंग्स नाउ व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो दिस वाज द रेस्टोरेशन जो सिस्टम था। ठीक है, इसमें हम ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट दैट इज ऑन मंडे विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, बिकॉज़ आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर, वो लॉन्गर टाइम लगेगा, हमें काफी क्लासेस लगेगी, मोर देन अ वीक भी लग सकता है, क्योंकि उसमें न्यू चैप्टर्स में कुछ न्यू पर्सनैलिटीज दी है हमें, जयप्रकाश नारायण है, ठीक है, दीन उपाध्याय है, तो इस टाइम से 2-3 दिया जिनके बारे में बुक में ज़्यादा नहीं है, वो मुझे एक्स्ट्रा बना करके लाना पड़ेगा। एंड आई विल गिव द नोट्स आल्सो, इफ यू वांट यू कैन राइट हियर आल्सो। ठीक है, और बेसिकली इफ यू वांट आप लिख करके आना तो बेटर होगा। जो मैंने आप लोग को नोट्स सेंड किए थे, रेफरेंस नोट, सीबीएसई के रेफरेंस नोट्स हैं, उसमें उन्होंने उन तीनों के बारे में दिया हुआ है जो हम पढ़ना है, तीनों पर्सनैलिटीज के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में पढ़ना है, फिर इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है,